आप स्टार्ट करते हैं सेशन को, राइट? So, as you all know, that current affairs plays a very vital role in all the examination, right? Whether it is BB entrances, CUET, law, XYZ, all the entrances, current affairs plays a very vital role. In fact, in IPM also, when you clear the first round, you reach up to the interview stage. There used to be the GD interviews. There also current affairs plays a vital role. So technically, current affair is a section which will be going to ask in all the examination which you guys are targeting, right? So focusing on that part only, I will. Yes, 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 beta. So I'm perfectly audible, na? Akshat, Sonam, everybody, just say yes or no. Perfectly audible, na? Some of you are saying that voice is not clear. All right, perfect. So let's start today's session. So as you all know, recently there is one head of a country who visited India, and he is from where? From Qatar. तो अभी कतर एक कंट्री है. If you see in the Middle East region, there are small countries like दुबई, UAE सबको पता है ना? मिडल ईस्ट का नाम आता है UAE, सबको पता है. इसराइल सबको पता है. पर एक छोटा सा कंट्री है कतर, जिसने 2022 में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था. तो अभी कतर के जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है वहां पर, क्योंकि कतर एक ऐसा कंट्री है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विजिटेड इंडिया. तो द फर्स्ट न्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द कतर हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक आपके किंग हो गए, राइट? यू नो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, when we talk about the constitution system, like India is what? India is parliamentary democracy, right? We have one head of state, that is president, and we have one head of government, that is prime minister. But if I talk about UK, what is UK? UK is parliamentary system, but it is monarchy also. There the head of state is, you know, that the queen rule, and the head of government is prime minister. सेम विद कतर. कतर में आपके प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और वहां पे हेड ऑफ स्टेट, वहां के किंग रूल जो चल रहा है वो होता है. तो उनके जो किंग है, अमीर तमीम बिल, ही रिसेंटली विजिटेड टू इंडिया, और इन्होंने इंडिया के साथ कुछ टाइप्स किए हैं. तो दिस current affair is basically the international relation current affairs, and India and Qatar, they have decided to start a bilateral relationship where they both country has discussed in the areas such as trade, energy investment, technology, food security, culture and people to people exchange. देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्री है, whether it is Kuwait, whether it is Yemen, whether it is Saudi Arabia, whether it is Iran, whether it is Iraq, these are the country, or Qatar also, these are the country that have a good, you know, रिसोर्सेज रिलेटेड टू लाइक ऑयल पेट्रोलियम वहां पर होता ही है. तो जब भी कभी ऐसी कंट्री के किसी भी हम लीडर से या ऐसी कंट्रीज के टाई अप हमारे होते हैं ना, उसमें एक चीज तो पक्का होती है, एनर्जी. एनर्जी ट्रेड तो, एनर्जी डील तो हम करते ही करते हैं. एंड ऑल्सो द कतर इज द मेंबर ऑफ द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल. तो इंडिया ने उसको भी देखते हुए कतर के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है. तो यहां से आपको इन शॉर्ट क्या नोट्स बनाने हैं? You have to just remember the name of the king of Qatar who has recently visited India, right? तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है. उसी के साथ साथ आपने नोटिस किया होगा, whenever we talk about any country, तो हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, right now we are talking about Qatar. So can you tell me what is the capital of Qatar? What is the currency of Qatar? Have you ever uh, saw the, you know, location of Qatar? Anybody? Kindly write in the comment section. Anybody? Because mark my words, in CUET especially,
देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रीज एंड करेंसी। पिछले 3 साल का ट्रेंड उठा के देखो, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा वहां से। एक क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल रिलेशन का मिलता है। इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव पिक अप दिस न्यूज एज अ फर्स्ट न्यूज, राइट? तो क्या क्या बातें याद रखना है? दैट कतर के अभी सॉरी जो किंग है, very good Akshat, yeah, so you can see the image also. So he is Qatar king, and here is our president of India Draupadi Murmu and our prime minister Narendra Modi ji, right? And you can now see the location of Qatar. तो अगर आप देखोगे, this is a map. Here we have UAE, here we have Saudi Arabia, and here we have a small country Qatar. ये वही कंट्री है। अगर आपके एग्जाम में कोई पूछता है 2022 फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, आप बोलोगे सर 2022 का क्यों बता रहे हो? बिकॉज आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप एवरी 4 इयर्स में होता है, तो जो लास्ट वाला है वो तो पता ही होना चाहिए। 2022 में किसने होस्ट किया था? कतर ने होस्ट करा था। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर, इट इज दोहा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कतर? इट इज कतरी रियाल, राइट? you can see here is a small country Bahrain, सऊदी अरेबिया, एंड हेयर यू हैव पर्शियन गल्फ। उसके बाद उधर ईरान भी आ जाता है, राइट? तो इतना कुछ याद नहीं रखना, पिक्टोरियली थोड़ा समझो। आई विल शेयर दिस पीपीटी ऑल्सो सो दैट यू कैन हैव अ क्विक रिविजन ऑफ इट, राइट? So the first current affair of today was the visit of the Qatari king, and I have told you one thing also. Qatar is what? Qatar is constitutional monarchy. तो उसका जो सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की सिस्टम है, राइट? दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में एक होता है हेड ऑफ स्टेट, राइट? जैसे इंडिया में मैंने बताया आपको, इंडिया इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। वहां पर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? एक होगा हेड ऑफ स्टेट और एक होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पर जनरली किंग रूल आपका चलता है, राइट? आई होप यू गॉट दिस आइडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कतर, राइट? एंड इट्स लाइज इन मिडल ईस्ट रीजन। दैट्स इट। एक बार जल्दी से all those students who are sitting right now, just quickly write yes sir, yes sir, yes sir in the comment section so that I can move forward. Once you write yes sir, then I will move forward towards the next current. Very good, very good, very good. उससे क्या होता है, थोड़ा एंगेजमेंट आ जाता है, राइट? ऑफलाइन में तो सामने शक्ल देख के मैं बता दूंगा कि आपको समझ आया नहीं आया, राइट? बट इन ऑनलाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to know that whether you have understood the topic or not, isn't it? Yes, exactly, exactly. So as many of the students have joined late, एक बार से quick revision लेके आगे बढ़ते हैं, so that all of you carry forward the class together, so that we can be in same parallel. So the first current affair अभी मैंने recently discuss करा है that कतर के जो हेड ऑफ स्टेट हैं आपके, जो उनके किंग है, क्योंकि वहां पर ये जो धानी जो आप देख रहे हो कम्युनिटी है, मतलब इन्हीं का ही किंग रूल चल रहा है, मोनार्की। तो इनके जो किंग है उन्होंने रिसेंटली अभी इंडिया में विजिट किया है, और कतर अब 5th गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की कंट्री बन गई है, जिसने इंडिया के साथ टाइप किए हैं। टाइप्स मैंने बताए हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री होगी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट तो होगा, और मेजरली हम किसकी बात करते हैं? पीपल टू पीपल एक्सचेंज करते हैं, फूड सिक्योरिटी, कल्चर, तो वही सारे टाइप्स इंडिया और कतर ने स्टार्ट किए हैं, right? If anybody asks you what is the capital of Qatar, it's Doha. And what is the currency? It is Qatari Riyal. कतर कहाँ पर लाई करता है? नेबरिंग कंट्री देख लो आप, इधर पर्शियन गल्फ है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। फाइन। एंड ऑल्सो आई गिव यू द वन point that in 2022 कतर also hosted the फीफा वर्ल्ड कप। ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? मैं बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कतर की ना इतनी कोई फेमस फुटबॉल टीम नहीं है। स्टिल कतर वॉज एबल टू गेट द यू नो राइट टू होस्ट द वर्ल्ड कप, तो बहुत न्यूज में रहा था, राइट? दैट्स व्हाई आल्सो आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। सॉरी, जस्ट टेकिंग
water. Just give me a second. Yeah, it's okay now. Now coming to the next current affairs. As you all know, that recently our Prime Minister visited 2-3 countries. Firstly, he went to Paris, है ना, फ्रांस गए थे पीएम मोदी. फ्रांस में आपने देखा होगा वहां पर जो एआई समिट है, इंडिया और फ्रांस ने जो रिलीज करी है, ग्लोबल एआई समिट, उस पर हमने डिस्कशन करा था. यस, वेरी गुड अक्षर. एंड आफ्टर दैट पीएम वेंट टू यूएस, राइट. जब हम यूएस से गए तो कुछ हमने टाइप्स किए. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप किया है इंडिया ने. इंडिया एंड यूएसए हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट टू establish javelin anti-tank guided missile. Javelin anti-tank guided missile. So this is very important. So both these countries, they have decided to expand their military partnership, and for that they have, decided that they will collaborate in the manufacturing of javelin anti-tank guided missile. अब इसमें नाम में ही वर्ड में क्या आ रहा है, javelin. So that means this missile will work like a javelin. आपने javelin देखा है ना, javelin throw, नीरज चोपड़ा, राइट. तो javelin आपने देखा होगा ना, इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ. तो ये मिसाइल भी उसी तरह से है. अ वेरी गुड मिसाइल दैट कैन बी यूज बाय अ इंडिविजुअल, दैट कैन बी यूज फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म. आप उसे लैंड से भी रिलीज कर सकते हो, वाटर में भी रिलीज कर सकते हो, एयर से भी रिलीज कर सकते हो. एंड इट इज अ काइंड ऑफ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, right? So to strengthen our defense technology, India has decided to, yes, exactly, projectile motion, very good. मैं अवॉइड कर रहा था, है ना, साइंस का कोई टर्म यूज ना करूं, बट यस, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना. आपने तो ऑल दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द पीसीएम बैकग्राउंड, दे मस्ट हैव स्टडीड प्रोजेक्टाइल मोशन इन देयर क्लास 11. बट नॉर्मल भाषा में याद रखना है, प्रोजेक्टाइल पैराबोला पाथ, है ना, बस ये वाला फॉलो करता है वो, राइट. तो ये मिसाइल भी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, इट्स फॉलो द सेम पाथ. ऑल्सो आई विल शो यू द इमेज सो दैट आपको पता चल जाए दैट ओके हाउ दिस वर्क्स. तो अ इंडिविजुअल कैन लॉन्च दिस मिसाइल. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अब एक चीज और याद रखनी है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे यूज्ड टू आस्क सर, करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या होता है ना. They used to have this query that there is lot to read. Anything under the sun can be asked in the current affairs. The answer is no. Once you get this, knack, कि एग्जाम में आता क्या है, it will become very easy for you. So always remember one thing. Any current affair that show the progress, any current affair that develop our defense strength, education, women empowerment, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसा अच्छा हो रहा हो, है ना, तो वो आपके एग्जाम में जरूर आता है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ये जो भी स्टैम्पीड हुआ है इन 40 महाकुंभ, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज अ डिग्रेसिव, नेगेटिव न्यूज. इन करंट अफेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो अभी क्या है, हमने डिफेंस टाई अप किया है यूएस के साथ, right? So we have, decided to have a javelin anti-tank missile. This is what this shows our defense strength. This shows the progressive news for the nation, isn't it? तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है दैट सर, इंडिया में जो डिफेंस डेवलपमेंट होते हैं वो कौन करता है, कौन करता है? Who used to do all these defense development, right? So for that we have one beautiful organization. Its name is, can you tell me the name of that beautiful organization जो हमारे इंडिया में डिफेंस डेवलपमेंट करती है? Anybody? Yes, it is DRDO. Who gets the answer? Let me check the answer. Yes, very good, Krishna. So we have one beautiful organization named as DRDO. It stands for Defense Research and Development Organization.
Can you tell me the headquarter of DRDO? Yes, it is in New Delhi. Very important. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. कभी आप भारत मंडपम प्रगति मैदान से जाओगे ना उधर की तरफ, ITO की वाली तरफ, you will see the headquarter of DRDO. When was DRDO established? If anybody asks you, because ये important है. क्यों है important? Because first जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं what? DRDO डे. Because first जनवरी 1958 में DRDO established हुआ था. Right? Very important organization which is related to the development of India's defense technology. Right? So kindly jot down all the things. Important days are also important in the exam. International organizations are also important in exam. India's major developing organization is also important in exam. Right? So we have a news related to defense. We should know which organization is dealing with that particular development of missile. Fine. Kindly write yes sir in comment section so that we can move forward. Fine, everything. Have you noted down all these things? Very good, very good, fine. Yes, definitely I will show the slide also, है ना. जो राइटिंग पार्ट है उसके लिए मैंने आई यूज दैट व्हाइट बोर्ड, क्योंकि क्या होता है ना, पीपीटी पे लिखते हैं वो इरेज हो जाता है, so that's why I've used the whiteboard, वो ताकि इरेज ना हो. And the last 15 minutes I will give you the brief revision also, so don't worry about it. ठीक है. प्लानिंग ये है, if you are giving let's say 10 minutes in the class, make sure you utilize your 10 minutes. If you are giving 1 hour, make sure you utilize your 1 hour. ठीक है. तो कोशिश करा करो कुछ चीजें क्लास में ही याद करने. हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली जी, आई विल शो द रिटन पार्ट ऑल्सो. आ जाओ आगे चलते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास को यूटिलाइज करो. राइट. तो अगर आप बैठे हो, लेट्स से मुझे पता है एग्जाम्स हैं और ये सब है, इफ यू आर गिविंग लेट्स से 30 मिनट्स ऑल्सो, प्लीज मेक श्योर वही जो हमने आज पढ़ा है वो हमारे याद हो जाए. जीके में बहुत होता है यार, 90% ऑफ द स्टूडेंट दे हैव दिस नोशन, अरे सर इतना पढ़ना होता है ना. वो कुछ नहीं पढ़ना, आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, रीडिंग करो, और आप देखो फिर जब आप अटेम्प्ट करोगे ना एग्जाम में याद आ जाता है. यू नो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कंसंट्रेशन से आप बैठ, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड सरप्राइजिंगली इट इज आल्सो द डिफेंस. India is having a very good relationship with many of the countries, and India is also hosting many joint exercises with these countries. आपने ग्रुप का नाम सुना होगा, उसका नाम है क्वाड ग्रुप. राइट, क्वाड ग्रुप. क्वाड ग्रुप में क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल. इन क्वाड ग्रुप वी हैव 4 कंट्रीज. जैसे क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं ना, वी हैव 4 कंट्रीज: यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया and Japan. Right? We have 4 countries as a quad member. तो ये भी important है, एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, which of the following countries are part of quad nations, है ना. तो ये बेसिकली पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन के आसपास के जो देश हैं वहां पर एक प्रो डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए ग्रुप बना है क्वाड. तो उसमें 4 देश आते हैं. वी हैव यूएसए, वी हैव इंडिया, वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव जापान. एंड इंडिया यूज्ड टू कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑल दीज. राइट. हम यूएस के साथ भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ जापान. यू हैव हर्ड अबाउट अ कंट्री कॉल्ड एज जापान. जापान को और भी क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन. बिकॉज जापान क्या होता है, अगर आप ग्लोब देखोगे, इट लाइज टू दी सबसे ईस्टर्न पार्ट पे होता है, और हमारा जो अर्थ है, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है ना. अर्थ का रोटेशन इस तरह से होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट. अब आपको पता है सन नाइदर राइज नॉर सेट, तो सन तो अपनी पोजीशन पे है, लेकिन जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो जो जगह वेस्ट साइड पे आएगी ऑब्वियसली सनलाइट वहां पर पहले आएगी. तो दैट्स व्हाई जापान इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन. राइट.
कोई मुझे बता सकता है दैट which state is called as land of rising sun in India? If I talk about with the perspective of India, anybody in the class? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोलते हैं जापान को, प्लीज अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड टेल मी which particular state is called as the land of rising sun. Come on, come on, I need your participation. Yes, वैष्णवी कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और बेटा हमारे इंडिया में तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, यू गेट द आंसर। अरुण, अरुण आपने देखा है ना, अरुण इज रिलेटेड टू व्हाट, रेड, जो सनशाइन होती है अरुण, आपने किसी फ्रेंड का भी नाम हो सकता है, तो अरुणाचल, तो दैट्स व्हाई वी गेट गॉट दिस नेम अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो लॉजिक है सब में। तो बस आप कभी नहीं आप भूलोगे, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इट इज अरुणाचल प्रदेश। अभी आपने देखा था ना, देयर वाज अ न्यूज दैट some of this some of the scientists they are saying that India should go for 2 time zones, because इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इट इज, अगर अरुणाचल और गुजरात की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, राइट, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है आपस, राइट। तो बहुत लोग बोलते हैं दैट वी शुड फॉलो वन, वी शुड हैव मल्टीपल टाइम जोन, जैसे रशिया के मल्टीपल टाइम जोन है, फ्रांस की मल्टीपल टाइम जोन है, बट इंडिया ने कहा नहीं यार, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कभी घूमने जाते हो तो नोटिस करना, वहां पर आप अरुणाचल में 4:30 के अराउंड ही आपका वो होने लग जाता है, रात को सनसेट हो जाता है, और अर्ली वहां पे सनराइज होता है, राइट। चलो खैर, कमिंग टू द टॉपिक, so I was discussing about Japan. So I've told you that Japan is a country which is called as the land of rising sun. Japan is a country that has faced, the first nuclear experiment, Hiroshima, Nagasaki. Everybody knows about it, related to Japan. And right now, जापान इज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और इसके साथ में मिलिट्री टाई अप करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है धर्म गार्जियन, धर्मा गार्जियन। तो अभी 6th एडिशन हुआ है धर्मा गार्जियन का, कहाँ पर होस्ट हुआ है, होने वाला है, तो ये माउंट फुजी, माउंट फुजी अगेन इट इज इन जापान। तो बेसिकली इंडियन आर्मी एंड जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आपका ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होगी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा that Dharma Guardian exercise is conducted between which 2 countries? So please remember it is India and Japan. और हमेशा एक बार मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में याद रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम में वही पूछी जाती है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है। आई हैवंट सीन एनी एग्जाम जिसमें कोई रैंडम मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई। So it's very important for you. So I am giving these hints to you so that you get to know यार पूछा क्या जाता है। Once you get this ना, trust me, it will become, it will become very easy for you, राइट। तो जहां पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। धर्मा गार्जियन व्हाट इज द फोकस, वेयर बेसिकली जो आपका ऐसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं आपस में। जैसे आपने स्कूल में देखा है ना, जैसे एक दो स्कूल का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, तो व्हाट वी बेसिकली अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर, वी बेसिकली एक्सचेंज द टेक्नोलॉजी, है ना। तो कुछ हमारे अंदर अच्छा है, कुछ सामने वाले के अंदर अच्छा है, वी यूज्ड टू कोलैबोरेट। तो और दूसरा क्या होता है, ये एक सिंबल भी होता है, दैट वी हैव अ गुड रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर, ठीक है। नो, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, डेट जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे मैंने अभी डीआरडीओ डे बताया, वो इंपॉर्टेंट, राइट। तो चिंता मत करो, जो डे मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट। आपके एग्जाम में बस सिर्फ इतना आ सकता है कि धर्मा गार्जियन के बारे में बता दो भाई, किस 2 कंट्रीज के बीच में हुए हैं। अब क्योंकि जापान की बात हुई है, यू कैन सी दिस इमेज ऑल्सो, we have, these are the Indian army soldiers and they are the Japanese soldiers, so they are exchanging the hand of related to Dharma Guardian. And briefly know about what is about Japan. So you can see there is one island nation, Japan. जापान के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जापान लाई करता है पैसिफिक ओशन, राइट। इसका जो लोकेशन है इट इज इन पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के भी ये उस पार्ट पे लाई करता है जापान जहां पर है रिंग ऑफ फायर। जब आप क्लास 6, 7, 8 में होंगे ना, तो आपने पढ़े होंगे वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक,
है ना? तब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिंग ऑफ फायर, रिमेंबर व्हेन यू आर इन जूनियर क्लासेस, 6th 7th 8th में हम पढ़ते हैं बचपन में, irrespective of the streams you are having right now, ये सबने पढ़ा होता है. And in this specific question ring of fire, there is, you know, a theory because there is a lot of disturbance in this particular region. तो दुनिया के 27% अर्थक्वेक और वॉल्केनो ना सिर्फ इस रीजन पे आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जापान उसी पार्ट में आता है. इसी वजह से जापान में यू विल सी दैट एवरी डे वहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही डिस्टर्ब एरिया पे लोकेटेड है. एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स, आज देखो जापान कितना आगे बढ़ रहा है. तो हम लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, हम वी यूज्ड टू गिव एक्सक्यूजेस टू आवरसेल्फ, अरे सर हमें टाइम से गाइडेंस नहीं मिली, सर हम तो ना पढ़ना चाहते थे बट ना ट्यूशन अच्छे नहीं मिले, सर मैम ने नहीं समझाया. तो वी यूज्ड टू गिव दीज एक्सक्यूजेस. सो लर्न फ्रॉम जापान. इट इज अ कंट्री दैट लाइज ऑन द रिंग ऑफ फायर. इट इज अ कंट्री दैट एक्सपीरियंस volcano every day. And despite all odds, they have developed. That's why they are very good in technology. They are very good in disaster management. In fact, India shares the disaster management techniques from Japan only, right? So this thing you have to remember. Second thing you have to remember, obviously, the basic thing, the capital of Japan, it is Tokyo. The currency of Japan is Japanese, right? So these are majorly four islands में divided है Japan. Hokkaido, Honshu, Shikoku. ये चार आइलैंड्स में ही, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इसमें ही आपका जापान है. आपसे कोई पूछता है कहाँ पर लाई करता है, तो प्लीज रिमेंबर इट लाइज इन पैसिफिक ओशन, राइट? रिंग ऑफ फायर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है. तो टिल नाउ पिक्चर इज क्लियर. जस्ट राइट यस सर इन कमेंट. आर यू एंजॉयिंग द क्लास? जस्ट राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा तो नहीं लग रहा बम्बार्डमेंट हो रहा है फैक्ट्स का, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? जस्ट टेल मी ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दीज. ऑल दोज हु आर नॉट रिप्लाइंग, आई पर्सनली रिक्वेस्ट देम प्लीज पार्टिसिपेट. चलें यार, फाइन. तो वी हैव कवर्ड नाउ द धर्मा गार्डियन पार्ट. चलते हैं आगे बिना किसी देरी, राइट? मूविंग फॉरवर्ड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, again a news which is related to what? Which is related to international Indian Ocean Conference 2025. अभी रिसेंटली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कमेंस होने वाली हुई है. कहाँ पर हुई है? सर मस्कट में हुई है. सर मस्कट कहाँ पर आता है? अरे ये तो ओमान की कैपिटल है, ओमान. I have recently told you about Qatar today. One more Middle East country, Oman. Oman capital Muscat. And here we have personally, recently Indian Ocean Conference conclude हुई है. But what is the theme of this year Indian Ocean Conference? It is voyages to new horizon of maritime partnership. So what all things you have to remember? You have to just remember number one, Indian Ocean Conference 2025, hosting nation Oman, place Muscat. What is the theme? Theme you have to remember. बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है. अब इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो, यू नो तो ऑब्वियसली क्या बात करेंगे भाई? मेरीन टाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे. आजकल आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा थ्रेट आ रहा है वो सी लेवल राइज का आ रहा है. दे आर कंट्रीज लाइक मालदीव, दे आर कंट्रीज लाइक वेनेजू, जहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो रही है बिकॉज राइज हो रहा है. तो उसे थोड़ा चेक करना है. कोरल ब्लीचिंग हो रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है ओशियंस का, उसे चेक करना है. जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन, बिकॉज आपको पता होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेड इन इंडियन ओशन हैज बीन इंक्रीज. अच्छा, एक छोटा सा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग्स. व्हिच इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? जस्ट गिव मी द कमेंट सेक्शन. मैं अभी एक मिनट अपना बोर्ड ओपन करता हूँ. व्हिच इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? बिजिएस्ट, समझ रहे हो ना क्वेश्चन? यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, समझे ना? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर द बोर्ड फर्स्ट. मैं बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ.
यस, वेरी गुड। अटलांटिक ओशन, वेरी गुड। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन, बिल्कुल सही बात है। अब कोई मुझे बता सकता है क्यों है ऐसा? व्हाई अटलांटिक इज द बिजिएस्ट ओशन? पैसिफिक सबसे बड़ा है। पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन। देखो, आप कभी अगर देखोगे ना, इफ यू सी द वर्ल्ड मैप, है ना, छोटा सा मैं आपको एक एक ड्रॉ करके बताता हूँ पिक्टोरियली, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, बिकॉज ये स्टैटिक का पार्ट भी है। तो यहाँ पे एक बहुत एक देश है जो भी चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये सब आते हैं यहाँ पे। देन वी हैव साउथ अमेरिका, ठीक है। हेयर वी हैव अफ्रीका, राइट, हेयर वी हैव अफ्रीका। हेयर वी हैव यूरोप, इधर आ जाता है हमारा एशिया, शुरू हो जाता है इधर, इंडिया आ जाता है, राइट। इधर रशिया वगैरह आ गया, इधर यूरोप आ गया, है ना। इधर वी हैव ऑस्ट्रेलिया, हेयर वी हैव ऑस्ट्रेलिया। हेयर वी हैव आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, है ना। बेसिकली मैप हमारा कुछ इस तरह से रफ। तो हेयर वी हैव पैसिफिक, ये इतना एरिया, इट इज पैसिफिक ओशन, दिस एंड दिस इज पैसिफिक। हेयर दिस एस शेप ओशन, this S-shaped ocean is the Atlantic. तो ये बात याद है। एंड दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन is the third largest ocean, right? Pacific Ocean is the busiest ocean because if you see यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है ना। तो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर आपका यूएस है, कनाडा है। तो इन लोगों का आपस में पुराने टाइम से ट्रेड होता है। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ड्यू टू ट्रेड एक्टिविटीज। यस, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ट्रेड सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आपने देखा होगा ओवर द पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले भाई यूरोप वाले पार्ट में आया, तो जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा वो ट्रेड करेगा। तो since 15th century onwards, these countries were involved in trade. That's why this particular ocean is one of the busiest ocean. इसीलिए जो टाइटैनिक सिंक हुआ था, everybody knows about टाइटैनिक। टाइटैनिक भी बेटा यहीं पर सिंक हुआ था, इसी में अटलांटिक ओशन, क्योंकि वो इट वाज कमिंग, मूविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एरिया वाइज पूछता है तो यू हैव टू गिव द क्रोनोलॉजी। सर, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है और फिर इंडियन ओशन। दिस इज द क्रोनोलॉजी एरिया वाइज। लेकिन आपसे कोई इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज पूछता है, बिजिएस्ट पूछता है, तो द आंसर विल बी अटलांटिक ओशन। डोंट गेट कंफ्यूज, उसको भी जनरली लोग पैसिफिक सोचते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, जब से चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना एज अ राइजिंग इकोनॉमी बना है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन। क्योंकि स्वेज कैनाल भी यहाँ पर रेड सी मेडिटेरियन से कनेक्ट करके इंडियन ओशन में सबसे पहले कनेक्ट कर, तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो गेटिंग द इम्पोर्टेंस, राइट। याद रखोगे ये बात, भूलोगे नहीं ना? वेरी गुड। तो अभी इसकी ही कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई है कॉन्फ्रेंस? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो आपको याद रखना है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी भैया मस्कट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का। इतना एरिया ये कवर करता है, नॉट टू रिमेम्बर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। बस क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, जस्ट टू गिव यू द एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडियन ओशन रीजन? as you all know, as I have told you already, that currently this region is been increasing in terms of trade because of China, India, one of the Malacca state, South China Sea, बहुत ट्रेड हो रहा है आजकल यहाँ। सेकेंडली, अभी ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं हुई है इस ओशन में, so it has abundant of resources, you know it has deposits of oil, gases, which is very important. It also build a crucial link between continents like Africa, Australia. So historically also it was a one of the busiest, one of the trade route. आपने वास्को डिगामा की स्टोरी सुनी होगी। तो वास्को डिगामा also it came from Cape of Good Hope, अफ्रीका के नीचे से फिर वो इंडियन ओशन में होता हुआ वास्को डिगामा आए थे इंडिया, है ना। तो ओवरऑल
26 कोस्टल नेशंस के साथ इंडियन ओशन आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो सी द इमेज ऑफ इंडियन ओशन, राइट? So this is Indian Ocean, right? So you can see this is Africa continent. This is Australia continent, you know. So it shares border with Africa, Asia, Australia, and this is Red Sea. हाँ, यहीं पर ही आपका सुएज कैनाल है, इजिप्ट में। तो आप देखते हो ना, पहले क्या होता था, पहले जब ट्रेड होता था बिफोर दी, ये जो बच्चे इकोनॉमिक्स के होंगे ना, ऑल दोज हु आर हैविंग इकोनॉमिक्स विद देम, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें सुएज कैनाल का मैप बना हुआ है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा दैट अर्लियर द ट्रेड वाज फ्रॉम बिलो द अफ्रीका, बट आफ्टर द यू नो establishment of Suez Canal which connects Red Sea and Mediterranean Sea, Suez Canal। तो आपको बता रहा हूँ, ब्रिटेन फ्रांस ने सुएज कैनाल बनाया था। राइट नाउ इट इज अंडर दी, इट इज नेशनलाइज्ड बाय इजिप्ट। इजिप्ट यूज्ड टू टेक टोल। तो अब क्या होता है, अब ट्रेड इस तरह से होता है, सपोज करो आपको यूरोप में ट्रेड करना है, इंडिया में सपोज करो लेट से गुजरात से ट्रेड करना है, तो शिप यूज टू गो फ्रॉम अरेबियन सी, और इधर यहाँ से एंटर लेगा रेड सी में, फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करके हेयर इज मेडिटेरियन सी, और फिर यूरोप आ जाता है। तो अराउंड 4 से 5 वीक पहले, मतलब शॉर्ट है ये डिस्टेंस, तो उससे होता क्या है, ट्रेड जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फ्यूल कॉस्ट नहीं लगती। तो ये बहुत यू नो इम्पोर्टेंट हो गया है रीजन, और ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, दिस द मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि चाइना से जितना भी ट्रेड होता है इट पासिस फ्रॉम मलक्का देन इंडियन ओशन देन। तो इसी वजह से इंडियन ओशन की एक तरीके से आप देखोगे इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रही है। इसीलिए आप देखोगे चाइना कोशिश करता है बार बार टू गेट पोर्ट्स इन इंडियन ओशन। you know have you heard about a port called as Chahabar Port? Anybody in the class? There is one famous port, Chahabar Port. There is one famous port, Gwadar Port. Gwadar Port important है ये, right? There is one famous port, Hamban Tota Port. Hamban Tota Port, ये सब पोर्ट्स हैं। ये सारे पोर्ट न्यूज में हैं क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट इट इज इन पाकिस्तान एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना, राइट? तो फिर इंडिया ने बनाया चाहबार, इट इज इन ईरान, so it is constructed by support of India. Chabahar is in Iran. Gwadar port is in Pakistan. Hamban Tota, India is investing here. China is also trying to invest there. It is in Sri Lanka. Why all these things is happening? Because of the increasing value of Indian Ocean. That's why every country want their port in this particular region. और इंडिया के पास एक एडेड एडवांटेज है, so that's why India want to you know created dominance in this particular। ठीक है, मजा आया? जल्दी से एक बार यस सर बोल। एवरीबॉडी काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन एबल टू अंडरस्टूड द टॉपिक। रटना तो नहीं पड़ रहा, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज माय पर्सनल आई ऑलवेज वांट टू रटना ना पड़े। नो, you should understand things organically. That is what I want from everybody, because GK में obviously the syllabus is vast in GK, but the best part about GK is if you get the if you command GK, mark my words, you can easily solve 20-25 questions hardly in 5 minutes। you know अब मैथ्स है, QA पार्ट है, LR पार्ट है, बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, अगर वो इजी आते हैं तब भी आपको उसमें अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। लेट्स से बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स एवरीबडी नोज बोर्ड मार्क्स, but you need time to solve in this that particular question। but when है ना, कुछ लेट से इजी है, तो अगर कोई क्वेश्चन लेट से 90 सेकंड्स में हो रहा है, अगर कोई इजी है टेक 60 सेकंड्स, है ना, इतना ही तो फर्क आता है। लेट से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बहुत इजी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, बट यू नीड टाइम टू रीड इट, देन टू रीड क्वेश्चन, देन टू अटेम्प्ट। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट जीके इज ना, if you get if you have a command in GK, you will hardly take seconds to solve। read, take। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन इंग्लिश, प्लीज कमांड जीके। क्योंकि ना देखो, आप एक चीज समझो, इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इफ आई गिव यू मोर टाइम, लेट से कोई एग्जाम है
लेट्स से सीयूटी का एग्जांपल ले लेते हैं, 60 मिनट का एग्जाम आता है जर्नल टेस्ट। अगर मैं उसे 90 मिनट्स का कर दूंगा ना, आप जितने बच्चे बैठे हो, आप सबका स्कोर अच्छा हो जाए। एग्जाम में स्कोर क्यों नहीं कन्वर्ट होता? क्योंकि एक तो एग्जाम प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर होता है, और कई बार क्या होता है यार, एक पार्ट डिफिकल्ट आ गया, एक पार्ट इजी आ गया, हम उसे स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, isn't it? So if you have a command in GK, because ultimately in general test, if I say, nobody is going to ask कि आपने किस सेक्शन को ज्यादा किया है, everybody is going to ask कितना स्कोर है। तो जिस बच्चे की जीके अच्छी है वो ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कर लेगा, और अगर आपका मैथ्स ठीक है आप ज्यादा टाइम वहां पे लगा लोगे, आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक एक यू नो इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो प्लीज स्ट्रेटेजाइज दैट वे। तो इंग्लिश, that the whole paper will be MCQ, then it will be easy to recollect. Yes, exactly, Palak, if you have studied something, है ना, वो याद आ जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। वो आप एक बार पढ़ो, थॉरो शॉर्ट नोट बनाओ, उसे रिवाइज करो, एग्जाम में क्लिक हो जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा था। तो जीके का ये एड ऑन है, ठीक है। यू विल रियलाइज दिस थिंग व्हेन यू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा करो। देखो, यू नो, हर एक, पता है कंपटीशन में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 100% रेडी, कभी नहीं लगता है, कितना भी पढ़ लो आप रेडी जब बनोगे जब आप जितनी प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस, यू नो, इन जीके आल्सो लेट्स से, यू नो, द मोर यू प्रैक्टिस। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, नो मैटर आपका सिलेबस हुआ नहीं हुआ, नो मैटर, यू नो, यू आर गुड इन, यू नो, लेट्स से, सर मैं SICI मेरा वीक है, मेरा परसेंटेज अच्छा है, मेरा यू नो रेशियो अच्छा है, व्हाटएवर, यू नो, इट अप लाइक सर ब्लड रिलेशन अच्छा है, वो कुछ भी है, प्रैक्टिस जरूर। डोंट अप्रोच कॉम्पिटेटिव एग्जाम जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम कि ठीक है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिलेबस, यू नो, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये 5 मार्कर 2 मार्कर है, ये आ जाएगा। नो, डोंट यू नो, कंपटीशन ऐसे नहीं होते। द वर्ड इटसेल्फ इज कंपटीशन, you have to compete with others. So the more you practice, the more confident you will be in the exam day, and you will have extra edge over it, right? And this is the done in, tested formula. ये रोड मेमोराइजेशन नहीं है कि ठीक है, यू नो 5 मार्कर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वही आएगा। नहीं भाई, कंपटीशन है, पैन इंडिया के बच्चे बैठे, यू नो, फील लाइक दिस। इट इज वेरी सॉरी टू से, बट यू नो, यू हैव ऑल दो स्टूडेंट हु आर इन क्लास, आपका आपस में कंपटीशन है, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, राइट? सो थिंक दैट वे, ऑलवेज गिव, अभी जैसे एग्जाम के बीच का ब्रेक है, कुछ भी है, एटलीस्ट गिव, यू नो, 30-40 मिनट्स, जस्ट सॉल्व क्वेश्चन। फिर देखो कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सिर्फ उसी चीज, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, यू नो, कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आपने, यू नो, आपका कच्चा पक्का है, लेकिन आपने उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपसे वो आंसर निकल गया, यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू फील दैट। और फिर क्या होता है, इट इज ऑर्गेनिक प्रोसेस। एक बार अच्छा लगा, फिर आप और अटेम्प्ट करोगे। लेट्स से यू डेवलप द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग 20 क्वेश्चन, यू नो, यू आर डूइंग गुड, विद टाइम यू विल डेवलप 40 क्वेश्चन, है ना। तो अगर कोई बच्चा है वो 1000-1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया एग्जाम डे से पहले, 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया एग्जाम डे से पहले, उसे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता होगा यार, मुझे पहले, यू नो, LR पार्ट उठाना है कि QA उठाना है, कौन सा पार्ट मुझे उठाना है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन उस तरह से था, मैंने जो सॉल्व किया था ना, इसमें वाली ट्रिक लगेगी, तो ऑर्गेनिकली थिंग्स विल डेवलप इन योर, ठीक है। चलो खैर, आगे चलते हैं। आगे अभी बाकी क्लासेस में भी बताता रहूंगा ट्रिक, अभी के लिए इतना ज्ञान बहुत है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स भी जरूरी है भाई, क्लास करंट अफेयर्स है, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया US अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस, अगेन रिलेटेड टू, यू नो, मरीन टाइम सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको बताया दैट पीएम मोदी पहले फ्रांस गए थे, फ्रांस के बाद US गए। US जाके क्या डिसाइड करा? इंडिया US अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस। अब ये अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस क्या है? दिस फोकस विल बी व्हाट? टू enhance industry partnership and production within Indo-Pacific, you know, so basically
इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेंथन करना है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है, सिक्योरिटी देखनी है। आज के टाइम पे इंडियन ओशन का इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, चाइना का थ्रेट है, वही सारी चीज। तो डोमेन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस, अगेन द थिंग्स आर सेम विच आई हैव डिस्कस्ड। किसके बीच में हुआ है, विच टू कंट्रीज इन्वॉल्व, इंडिया एंड यूएस। बार बार ये बात बता रहा हूँ दैट पीएम मोदी फर्स्ट विजिटेड यूएस, फ्रांस देन यूएसए। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अगर ऑप्शन में दिख जाएगा ना यूएसए, आप दिमाग लगा लोगे, हाँ यार अभी तो गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से सोचा करो, एग्जाम में हाँ क्वेश्चन इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर वाटर अवेयरनेस क्या है, जो मैंने आपको बताया। तो मेजरली नेशनल सिक्योरिटी, मरीन टाइम सेफ्टी है। जैसे मैंने बोला चाइना का इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर रीजन में बढ़ रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना है, राइट। रिसोर्सेज वहां पे देखनी है। एंड एज यू नो वन ऑफ द partners, USA is also trying to give solidarity to India when if anything is like if India China is not having a good relation, so indirectly USA is giving solidarity to India in by these type of programs. तो इनडायरेक्टली तो बोल रहा है ना यूएसए, ठीक है हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, चाइना को कंट्रोल करेंगे। हालांकि डायरेक्टली नहीं बोल रहा हो, पर इनडायरेक्टली इट इज गिविंग एज टू इंडिया, राइट। अंडरस्टूड द टॉपिक। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, इंडिया एंड यूएस। अब एक न्यूज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा रिसेंटली दिल्ली इलेक्शन इन दिल्ली। सबसे पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं, है ना, फिर मैं आऊंगा इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में, बिकॉज अभी रिसेंटली नए हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं, तो मुझे न्यूज वो बतानी, बट लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली इलेक्शन बिकॉज रिसेंटली दिल्ली, तो रिसेंटली हमारे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना दिल्ली के बारे में। हमारे इंडिया में क्या हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1990 एक अमेंडमेंट आया जिसका नाम था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसके बाद पता है क्या हुआ, इसके बाद हुआ दिल्ली बिकम, यस यस यस, ये पहले 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 पूरी स्टोरी सुनो फिर मैं आऊंगा उससे। उसके बाद क्या हुआ, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ, दिल्ली बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के टाइम पे वी हैव ओनली ओनली थ्री यूटीज जो कि इस मॉडल पे काम करती है। मतलब कि वो यूनियन टेरिटरी भी है पर वहां स्टेट लेजिस्लेचर भी। जैसे एक तो दिल्ली हो गया, एक हमारा हो गया पुडुचेरी, राइट, एंड वन इज JNK। These three union territories are kind of a special territories because they are having state legislature. अब बहुत नेचुरल बात है भाई, अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहां पर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, इजंट इट। तो इन तीनों यूटीज के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। अब उन चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन भी होंगे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली का एक स्ट्रक्चर याद रखना, दैट आफ्टर 69 कॉन्स्टिट्यूशन, पहले नहीं था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, बिकॉज इफ यू चेंज समथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पहले अमेंड करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी हैव एन आर्टिकल, वेरी फेमस आर्टिकल 368, जिसमें अमेंडमेंट अमेंडेबिलिटी की पावर है। तो पहले अमेंड किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर बनाया गया और फिर वहां पर फर्स्ट इलेक्शन। और ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में जहां पर यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे। कैन यू टेल मी हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट, एनीबडी इन द क्लास? अभी हुए हैं 6 मंथ्स बैक, पहले ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, वो भी न्यूज में। एनीबडी, आई वांट योर पार्टिसिपेशन, प्लीज काइंडली पार्टिसिपेट। यस यस यस, वेरी गुड नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दिल्ली का स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली
दिल्ली में इलेक्शंस हुए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला, यस यस। तो अभी दिल्ली दिल्ली इलेक्शंस हुए, एंड इन दिल्ली इलेक्शंस वी हैव फोर्थ चीफ मिनिस्टर जो कि वुमेन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कौन से नंबर कितनी वुमेन चीफ मिनिस्टर्स बनी हैं अभी। तो कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी बनी है, शालीमार बाग कॉन्स्टिट्युएंसी से थी, राइट। कितने सीट्स पर इलेक्शन हुए हैं? 70 सीट्स पर इलेक्शन हुए हैं, राइट। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी फीमेल, कोई बता सकता है? यस यस यस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी? कैन एनीबडी टेल मी दैट? राइट, so the first one is सुषमा स्वराज, पहले बनी है। उसके बाद शीला दीक्षित बनी है। शीला दीक्षित तो बहुत टाइम तक रही चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो शीला दीक्षित भी, यस यस वेरी गुड, सबके नाम पता होने चाहिए क्योंकि देखो वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो शीला दीक्षित हो गई, ठीक है। अभी आपने देखा आतिशी कुछ टाइम के लिए बनी थी जब अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड किया था, स्टेप डाउन किया था, तो बीच में आतिशी आपकी रही, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑब्वियसली रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, तो टोटल कितनी चीफ मिनिस्टर रही हैं फीमेल? तो यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखें। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोर चीफ मिनिस्टर, रेखा गुप्ता, सेवन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फीमेल चीफ मिनिस्टर आर राइट नाउ इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितनी फीमेल चीफ मिनिस्टर? बताओ। स्टेट स्टेट वाइज सुना है? बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट है भाई। अभी आपने देखा होगा, यू नो हमारे लोकसभा इलेक्शंस भी हुए लास्ट ईयर 2024 में। ममता बनर्जी इज वन, यस वेरी गुड, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को लीड करिए ममता बनर्जी। और भी कोई है जो फीमेल चीफ मिनिस्टर आप देखते हो करंटली? करंटली और कोई नहीं है, और रेखा गुप्ता सेकेंड हो, ठीक है। बीच में कुछ टाइम के लिए रहे लोग पर नहीं है। और एक फैक्ट और याद रखना, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम चल रहा है, अभी इस बार की जो लोकसभा है ना हमारी, अगर आपसे कोई पूछे कितने लोकसभा एमपीज हैं फीमेल, तो याद रखना 74। जितने भी मेंबर ऑफ अभी लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं उसमें सिर्फ 74 फीमेल। ये एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज पॉइंट्स आर ओके। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? जल्दी से एक बार यस सर यस सर करो, फिर मैं आता हूँ इलेक्शन कमीशन वाली, क्योंकि जब दिल्ली के इलेक्शन हुए तभी उसी के बाद तुरंत बाद नए इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में अपॉइंट हुए, और जब वो अपॉइंट हुए तो उन पर एक कंट्रोवर्सी हुई, है ना। ऑपोजिशन कह रहा है कि गलत तरीके से अपॉइंट हुए हैं, तो मुझे वो पूरा समझाना है। तो पहले मैंने सोचा पहले आपको दिल्ली इलेक्शन पर, है ना। फाइन, अब आते हैं उस बात पे जो मुझे आपको बताना है। लेकिन उस बात पर आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको ये बताऊं इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस क्या है। और एक न्यूज और चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन।
isn't it? So recently, you know, there is a bill which is related to one nation one election. तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें, ताकि इलेक्शन एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को रखा गया है. ऑल्दो इट इज बिलीव कि अभी वो पार्टिसिपेट मतलब पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है. बट व्हाट इज दिस वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन सेज दैट देयर शुड बी साइमल्टेनियस इलेक्शन. किसके? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. याद रखना इसमें राज्यसभा नहीं है. एंड विद इन 100 डेज लोकल इलेक्शन जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी किया जाएगा. राइट. तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन. पर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा बिकॉज उसके लिए पहले डीलिमिटेशन कमीशन बनाना है. सेंसस भी नहीं हुआ है इंडिया में. इंडिया में अभी सेंसस भी थोड़ा डिले चल रहा है. वो होना चाहिए था 2021 में, बट उस टाइम पे कोरोना था तो वो नहीं हो पाया है. तो इट इज बिलीव कि 2025 में हमारा सेंसस हो जाए, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आप मान के चलो 2029 तक ये इम्प्लीमेंट होगा. राइट. वन नेशन वन इलेक्शन. तो पर आपको पता होना चाहिए. यस यस यस. रिकॉर्डिंग विल बी देयर ऑन पोर्टल बेटा. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? तो जिसमें लोकसभा, जितने भी स्टेट है स्टेट लेजिस्लेचर, और 100 डेज के अंदर जो लोकल लोकल इलेक्शन की जगह लिखो वर्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत होता है, म्यूनसिपैलिटी होती है, उन सबके इलेक्शन साइमल्टेनियस. ये हो गया वन नेशन वन. राइट. नंबर वन. अब सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमारे इंडिया में 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? बोलो. आप बोलोगे सर दिन हुआ. नहीं, दिन तो हुआ, पर और क्या हुआ? 25 जनवरी 1950 को ना बेटा एक बॉडी बनी हमारे इंडिया में जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन. राइट. और इम्पोर्टेंट पता है क्यों है ये? 25 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं वोटर्स डे. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वोटर्स डे कब मनाते हैं? आप बोलोगे सर 25 जनवरी को. क्यों मनाते हैं? बिकॉज 25 जनवरी 1950 को हमने देखा क्या? दैट 25 जनवरी 1950 को हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शंस. राइट. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. चलें आगे. अब इसमें क्या बात? सर वोटर्स डे. यस यस, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड खुशी बेटा. है ना? तो वोटर्स डे आपसे कोई पूछता है सर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया में? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. इट इज सुकुमार सेन. ठीक है. क्लियर है? सुकुमार सेन. क्लियर है यहां तक की बात? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं अभी रिसेंट वाले बताऊंगा. तो रिसेंट वाले से पहले आपको फर्स्ट वाले पता होने चाहिए, इजंट इट? तो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी दे दी सारे इलेक्शन. दिल्ली इलेक्शन अभी 6 महीने पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हुई है, वो क्लियर हुआ. उसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन कब बना वो हुआ क्लियर. और काम क्या है? ऑब्वियसली जैसा नाम है वो काम है इंडिया में फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा, यू नो, विदाउट एनी बायस. क्लियर है? फाइन. चलते हैं अब न्यूज. बैकग्राउंड स्टोरी हमारी हो गई है क्लियर. अब न्यूज पे न्यूज क्या कहते हैं? न्यूज पे जब हम आएंगे तो न्यूज बात करती है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी रिसेंटली नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं और उनके अपॉइंटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है.
तो मैंने आपको फर्स्ट बताया, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन। और अभी 26 कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार, राइट। तो ये बने हैं आपके 26, इंपॉर्टेंट है नंबर, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पता हो गया, 26 पता हो गया। सर 25th कौन थे, यस यस, 25th कौन थे, 25th थे आपके राजीव, 25th थे राजीव कुमार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सर इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे अपॉइंट कौन करता है, तो याद रखना, एज पर आर्टिकल 324, as per article 324, the election commissioner is appointed by president of India। तो किसने अपॉइंट किया, द्रौपदी मुर्मू। सारी बात क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। 99% चांस है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम, बिकॉज बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट आती ही है एग्जाम में। और अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, मार्च में आपका पेपर है, तो ये है। ठीक है ना, चलें आगे जल्दी से एक बार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर लिखो कमेंट सेक्शन। मजा आ रहा है नहीं यार, ये भी लिखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कौन अपॉइंट हुआ है और क्या है। अब मैं आपको उस बिल और कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी, ठीक है। अभी तक ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 324 आपको पता होना है। इसके अलावा आपको एक आर्टिकल और पता होना चाहिए, 326, जो की बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे इंडिया में हम फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। जिसमें हम क्या बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि यार वी हैव राइट टू बेसिकली वोट, है ना। तो हमारे इंडिया में जो वोटिंग राइट्स हैं वो गिवन है अंडर आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम 1950 टिल 1988, तब तक हमारे इंडिया में जो वोटिंग एज थी ना, वो थी बेटा 21 ईयर, राइट। फिर बेटा क्या हुआ हमारे इंडिया में, फिर हमारे इंडिया में एक चेंज आया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जिसका नाम है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और बेटा इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हमारे इंडिया में जो एज है वो आपकी कम हो गई 21 ईयर से 18। ये हो क्लियर है, तो आपको याद रखनी है सारी बातें। और किसमें पावर गिवन है, आर्टिकल 326 में पावर। ये आर्टिकल, ये न्यूज तो ना आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपका एग्जाम है कि नहीं भाई। वोटिंग राइट, है ना, वो कहते हैं ना, यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ कंट्री बाय कास्टिंग वोट, है ना। तो इतनी बड़ी चीज होती है वोटिंग राइट। तो हम सबके पास वोटिंग राइट, यू शुड नो द बेसिक स्टोरी बिहाइंड इट, है ना। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यू शुड नो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, you know and you will surprised to know India is one of the first country among Asia जिसने वोटिंग राइट्स दिया लोगों को, यू नो। उस टाइम पर यूएस, जो कि आज के टाइम पे बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी बोला जाता है, वन ऑफ द यू नो विच इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मेच्योर डेमोक्रेसी, उसने भी फीमेल्स को, ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिया था 1950s
में वोटिंग का, पर हमारी कंट्री में था। तो वी शुड फील प्राउड ऑफ इट एंड वी शुड ऑल्सो नो इररिस्पेक्टिव हमारा एग्जाम है कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जब हम आएंगे तो आते हैं रिवाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। ये इसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी। एक्चुअली क्या हुआ था हमारे इंडिया में, जैसे मैंने बताया, इलेक्शंस, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट कौन करता था? प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा तो है नहीं प्रेसिडेंट भाई ऐसे अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर देगा, है ना? ऐसे तो था नहीं। होता क्या था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था किस पर्सन को जिसे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इन, राइट। और जनरली इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे वो उसी फील्ड के होते हैं, जैसे कोई सिविल सर्वेंट हो गए, राइट। जैसे सिविल सर्वेंट ने डिस्टिंग्विश सर्विस करी है, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो सेम होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज के होते हैं, है ना? तो सब एक अच्छे सिविल सर्वेंट जो रिटायर हो रहा है भाई, उसे हम अपॉइंट कराते हैं, है ना? इसमें परमानेंट टेन्योर होता था ऑफ 6 years का। एंड इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये भी होता है दैट ही और शी कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। अगर आप एक बार उस पोस्ट पर अपॉइंट हो गए हो तो ऐसा नहीं कि दोबारा आपको अपॉइंट कर देंगे, नहीं। आप लाइफ में एक ही बार अपॉइंट हो सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? 2023 का बिल ध्यान रखना है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। 2023 में क्या हुआ? 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बोला गया दैट देयर शुड बी सम चेंज इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। एंड व्हाट इज दैट चेंज? द चेंज शुड बी दैट देयर शुड बी अ 3 member कमिटी। एक 3 member कमिटी होनी चाहिए जिसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। ये 3 लोग होंगे। अब ये 3 लोग डिसाइड करेंगे कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। लेट से इन्होंने डिसाइड करा कि एक्स पर्सन बनेगा, तो फिर उस एक्स पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के। तो ये जो 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें इस प्रोसेस के बारे में बात की गई। लेकिन अभी जो ज्ञानेश कुमार जो अपॉइंट हुए हैं उसमें इस प्रोसेस को हटा दिया गया और पुराने प्रोसेस को फॉलो किया गया। और पुराना प्रोसेस क्या कहता था कि अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली। और ये जो कमेटी को हेड करेगा वो लॉ कमिश्नर, लॉ यू नो मिनिस्टर जो होगा वो हेड करेगा। तो इस वजह से उस पर बहुत से ओपोजिशन लीडर ने कहा कि आपने उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगेन वट एवर इट इज एज पर द लॉ। तो ऐसा कुछ नहीं कि लॉ में नहीं था, दे हैव जस्ट फॉलो द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, तो मैंने आपको पुराना तरीका बताया, किस तरह से अपॉइंट हुआ है वो बताया, कौन अपॉइंट हुए हैं वो बताया, इलेक्शन कमीशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो बताया। अब जल्दी से मुझे बताओ, all these things are clear on? Please write in comment section, yes sir, yes sir, yes sir. A very important news. वेरी गुड, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहां से हमने बात करी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था ना मैं दोनों चीजें बताऊंगा, कौन अपॉइंट हुआ है और ये सारे फैक्चुअल चीजें याद रखना। 26 इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया, है ना? ज्ञानेश कुमार, पहले से पहले राजीव कुमार जो 25th। ठीक है, आपसे कोई पूछे सर वो भी बता दो, इतना सब कुछ बता रहे हो, टेन्योर वगैरह भी बता। व्हाट इज दी टेन्योर? तो मैं 1 मिनट ये रब कर देता हूँ तब बताऊंगा। हाँ, टेन्योर भी बता दो। टेन्योर होता है 6 years। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा। हाँ, टेन्योर क्या है? 6 years का टेन्योर होता है। यस यस, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, कृष्णा आपने 6 years लिखा, टिल द रिटायरमेंट नहीं होता, वो होता है 6 years और 65 years, विच एवर इज।
जैसे या तो 65 ईयर्स तक एज वाइज, और टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। अगर टर्म वाइज पूछें तो होता है 6 ईयर्स, एज वाइज पूछें 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाएगा वो माना जाएगा। लेट से कोई पर्सन है वो अपॉइंट हुआ है, लेट से कोई पर्सन है वो अपॉइंट हुआ है 62 ईयर्स, जब उसकी एज 62 ईयर्स है तो वो पर्सन रहेगा 65 तक। लेट से कोई अपॉइंट हुआ है जो 55 ईयर्स का था, तो वो रहेगा फिर 60 ईयर्स, 61 ईयर्स तक, 6 साल रहेगा। तो जो भी चीज पहले हो जाती है वो फॉलो की जाती है। ठीक है। और सुप्रीम जो ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसके जो अलाउंसेस होते हैं, पे होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसके बराबर होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के इसमें इसके साथ इसे रीअपॉइंटमेंट की पावर नहीं होती। अगर एक कोई इंडिविजुअल है वो चीफ जस्टिस ये सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, वो दोबारा नहीं बन सकता अपनी लाइफ। राइट। चलें आगे। So this is the important news that I want to share. I will share this PDF. Sir, what is the tenure of president? बेटा पलक, प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। हमारे इंडिया में टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स का। यूएसए में प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 4 ईयर्स। ठीक है। 90% जितनी भी हमारी पोस्ट है वहां पे जनरली आपको 5 ईयर्स ही मिलेगा। इलेक्शन कमिश्नर 6 साल होता है। कैग आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो 6 साल होता है। ठीक है। कोई बात है तो बताओ। इज इट फाइन? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? जल्दी से बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इज इट फाइन और नॉट? वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं जो अभी फरवरी में हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, देयर मेनी थिंग्स विच आर बाय डिफॉल्ट आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको एज देंगे। जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए। तो अभी फरवरी के कुछ डेज हैं, जैसे हम वीकली क्लास करेंगे तो मैं सारे बताऊंगा। हालांकि और भी होते हैं, पर एक साथ में बम्बार्डमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अकस्टम हो जाओ थोड़ा, है ना, धीरे धीरे करके समझ आती हैं चीजें। एक डे होता है जिसका नाम है वर्ल्ड वेटलैंड। ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी एवरी ईयर। क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। और ये रामसार कन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ईरान। और इस कन्वेंशन में क्या हुआ था? बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स की बात की गई थी। रामसार इज वन ऑफ द लेक इन ईरान। अब आप बोलोगे सर वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड कोई भी एरिया होता है जहाँ पर ऑन एन एवरेज 6 मीटर वाटर रहेगा ही रहेगा। मे बी इट कैन बी लेक, इट कैन बी पॉन्ड, मे बी इट कैन बी आर्टिफिशियल रिजर्वर। जैसे आपने देखा ना दिल्ली में ओखला बर्ड सेंचुरी के पास है संजय लेक है ना। तो ये क्या है? दीज आर द वेटलैंड। राइट। तो इस बार की जो थीम रही वेटलैंड डे 2025, दैट वाज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट। There, I'm new here. How do you start from scratch? Let us see. Just right now, follow the process. You know, follow the process. Everything will be covered in class. Not to worry about it. Right? Just follow the process. And अभी चाहे आपके एग्जाम है कुछ भी है, मेक श्योर यू जस्ट गिव राइट नाउ, जब तक आपके बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते, मेजर एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, जस्ट गिव 30 मिनट्स फॉर रिविजन। दैट्स इट। इतना करते रहो, बाद में कवर अप हो जाएगा। अभी इनिशियली इंपॉर्टेंट क्या है? इनिशियली इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मुझे सब पढ़ना है। इनिशियली इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे ग्रास्प हो रहा है कि नहीं। दैट्स बी इन प्रेजेंट। आप कम पढ़ो लेकिन आप पूरा पढ़ो। 90% पीपल व्हाट दे डू, सब कुछ पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं, ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है।
तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। 22 फरवरी 1971 ईरान में एक कन्वेंशन हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेटलैंड डे याद है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के कुछ फेमस लेक्स के बारे में बताओ जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हम। एक लेक है फेमस, चिल्का लेक। ये इंडिया का लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन उड़ीसा। इट इज इंडिया लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक। देर इज वन लेक बहुत वेरी फेमस, इट्स नेम इज द लार्जेस्ट। हाँ, नहीं, हाँ, एक एक लेक है सांबर लेक। आ रहा हूँ बेटा, फ्रेश वाटर पे भी आ रहा हूँ। सांबर लेक, ये इंडिया का इनलैंड लेक, ठीक है। इनलैंड लेक है सांबर लेक। ये कहाँ पर है? राजस्थान में, राइट। अभी पलक हैज आस्क्ड फ्रेश वाटर, इंडिया में जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम है वूलर लेक, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये सब लिख लेना, दैट इज वूलर लेक। ये कहाँ पर है बेटा? JNK में। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? सांबर लेक हो गया, चिल्का लेक हो गया, वूलर लेक हो गया, इंपॉर्टेंट लेक है। वेटलैंड डे पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से यस 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 बोलो। आई नो यू आर काइंड ऑफ फीलिंग लाइक एग्जॉस्टेड, ठीक है। चिंता मत करो, अब टाइम की मैं क्लास कंक्लूड करूंगा। एक बार बस मुझे बताओ, मजा आ रही है? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एंजॉयिंग और नॉट? बम्बार्डमेंट ऑफ द टॉपिक तो नहीं हुआ? यस, खुशी, यस यस, खुशी, palak, yes, I want everybody to answer this. Are you enjoying? That is very important, and mark my words, all the current affairs are important, and share this PPT also. Yeah, so world batting day we have covered, ठीक है। वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, अभी फरवरी में जो हुआ है। वेटलैंड डे के 2 दिन बाद आता है, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। ऑब्वियसली सच डेज आर टू क्रिएट द अवेयरनेस। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी। वर्ल्ड कैंसर डे टू क्रिएट द अवेयरनेस related to cancer, right? And it is united by unique, the theme, वर्ल्ड कैंसर डे 2025। 4 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड कैंसर डे, यूनाइटेड बाई यू। तो अभी ना यहाँ पर 3 इयर्स का कैंपेन भी रन हुआ है वर्ल्ड कैंसर डे पे 2027 तक, सो दैट टू क्रिएट द अवेयरनेस। जैसे आजकल आप देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, यू मस्ट हैव नोटिस जो लास्ट टेस्ट मैच होता है, जो सिडनी टेस्ट मैच होता है, वो जनरली पिंक टेस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं उसे पिंक टेस्ट, बिकॉज वो अवेयरनेस के लिए होता है रिलेटेड टू कैंसर, राइट। तो इस तरह की भाई अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों को पता हो, जल्दी अवेयरनेस हो, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही प्रिवेंट कर दो चीजों को, तो फिर बाद में क्योर कराने की जरूरत नहीं। तो वर्ल्ड कैंसर, तो मैंने पहले बताया आपको वर्ल्ड वाइटल डे ऑन 2 फरवरी। देन वी हैव वर्ल्ड कैंसर डे ऑन 4 फरवरी। और एक और फरवरी का डे हम पढ़ेंगे, दैट इज वर्ल्ड पल्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे कब होता है? 10 फरवरी। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू वैलेंटाइन डे बिकॉज examiner is not interested in asking such things. They are majorly, focused on the days which are important for exam perspective, or you can say the awareness perspective. World Pulses Day.
तो वर्ल्ड पल्सेस डे आपका सेलिब्रेट होता है 10th ऑफ February। इस बार की थीम क्या है? पल्सेस ब्रिंग डाइवर्सिटी टू एग्रीकल्चर या एग्री फूड सिस्टम। तो पल्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पल्सेस। तो मैंने आपको 3 डेज बताया, ऐसा नहीं है फरवरी में और डेज नहीं होते। अभी 28 फरवरी आएगा, वर्ल्ड इंडिया नेशनल साइंस डे होता है। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, पर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक बार में उतना पढ़ो जितना डाइजेस्ट, है ना। ऐसा नहीं है, और भी डेज होते हैं, मदर टंग डे, सब डेज होते हैं फरवरी के ही, पर अभी के लिए बस ये 3 याद रखने हैं आपको। यस यस, ऑब्वियसली सिद्धि, इट विल बी अपलोडेड ऑन पोर्टल, राइट। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको कुछ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर दिस, बिकॉज एक बार दो बार लिख के देख के यू विल गेट टू नो। क्या ठीक है सर। तो क्या क्या है हमारे? 10th February, 2nd February, 4th February। 2nd February इज वेटलैंड डे, मैंने आपको बता दिया। 10th इज पल्सेस, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जो कि डेफिशिएंट है पल्सेस के। और 4th इज कैंसर, राइट। अवेयरनेस के डेज हैं सारे, टू क्रिएट द अवेयरनेस इन सोसाइटी, वी शुड नो अबाउट इट, राइट। और पल्सेस के बारे में याद रखना है, इन्हें लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं पल्सेस, है ना। नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, लेगुमिनस प्लांट होते हैं। तो ये भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पल्सेस के बारे में, है ना। प्रोटीन कंटेंट वेजिटेरियन के लिए तो वही पल्सेस भी होता है खाना, है ना, प्रोटीन, है ना। सुपर फूड्स भी बोलते हैं पल्सेस को। दे हैव अ गुड, दे हैव अ गुड, फाइंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पल्सेस, राइट। तो कैंसर, वेटलैंड, पल्सेस डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक 28 फरवरी को भी आएगा अभी आज, तो वो होगा नेशनल साइंस, नेशनल साइंस डे। Why National Science Day is important? National Science Day is important because सीवी रमन इंडिया के, नो, इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। जब आप क्लास 9th में हो गए तो आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, वहीं पर आपने रमन इफेक्ट पढ़ा होगा। क्लास 9th के एनसीईआरटी में है ना, टिंडल इफेक्ट, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई करा था, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है, तो ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, लिटरेचर। लेकिन साइंस की कैटेगरी में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो सीवी रमन है, नेशनल साइंस सीवी रमन। ठीक है, याद रखना, फिजिक्स में मिला था इन्हें। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। तो नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम 28 फरवरी, राइट। So this is all about today's class. Now, if anybody is having any doubt, you can ask your doubt. I can cater your doubt now, right? कोई previous doubt है, I will show the slide again, right? And I hope you do like this session. See you soon in my next class. Till then, I request everybody to be positive. Number one, keep revising things. Number two, and be motivated. That's it. You know, life is a blessing if passion stands tall. So have that passion. That's it, right? So if you have any doubt, now I can cater your doubt. ठीक है? Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. Sir, sir, where can, no, it is there on portal, beta. You can coordinate with it. Operation team member, they will help you. Just have go through the portal part. You know, anything else? Anything else you want to ask? Anybody? This is all. Anybody? Any doubt? Anything? So I will wait for next 5 minutes and then I will close the session.